ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਕੋਪ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 12th ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਦੂਸਰਾ ਵੀਡੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ। ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ, ਚਾਰਜ ਔਰ ਮਾਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਸੈੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਨੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੈਥੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਵਿੱਚ डिसोसिएट हो जाता ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, because the electrolyte is a substance or a aqueous solution which gives ions after passing the electricity। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਕੀ ਲਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਲਾਅ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਲਾਅ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। the mass of substance, the mass of substance deposited at cathode, या तुम इलेक्ट्रोड भी कह सकते हो, या भी कह सकते हो गैस डिपॉजिटेड, क्योंकि कई केसेस में गैस डिपॉजिट होंगी है ऑन इलेक्ट्रोड is directly proportional to the amount of charge passing through इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कह लो, इलेक्ट्रोलाइट कह लो, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट कह लो, जिस तरह मर्जी कह दो, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कह देने हैं। की मतलब है कहता द मास ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड एट कैथोड। मैं क्या कि इन्हों कैथोड क्या हो सकता, इलेक्ट्रोड क्या हो सकता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਦੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਤੇ ਕੀ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਨਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕੈਥੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕੱਲ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
सो ये जी लिबरेशन हो रही है, कितना लिबरेट होएगा ये बारे लॉ यह कह रहा लॉ कि द अमाउंट ऑफ मास लिबरेटेड और डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। इतने मैं गैस की गल भी की है, अगर मान लो Na पॉजिटिव की जाए HCl होंदा साडे को ते इत्थे की जाना ही H पॉजिटिव, ते मैं तुहानू दस्सिया ही H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव जदों न्यूट्रल हो जाते हैं तो इन्हें तुहानू की देनी हाइड्रोजन गैस दे देनी। सो इस केस विच हाइड्रोजन गैस इधर आनी सी। सो दोनों गल्लां सही है। किसी भी इलैक्ट्रोलिटिक प्रोसैस के दौरान कितना मास किसी इलैक्ट्रोड के उत्ते डिपॉजिट होवेगा और डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगा कितना चार्ज तुसी इलैक्ट्रोलाइट दे विचों दी पास करे करते हो। इट मीन्स द मास डिपॉजिटेड ऑन इलैक्ट्रोड is directly proportional to the charge given to the electrode। चार्ज की दिता तुसी Q चार्ज दे दिता। समझ आ गया? इस लॉ ਨੂੰ ਆਪਾਂ स्टेटमेंट्स बना लिया। चलो नंबर की देना है चीज समझा देना। सानू पता कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जेड़ा वा इत्थे कोई रोल नहीं है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ਆਪਾਂ हटा दिन्ने आ ते ਆਪਾਂ लगावांगे इत्थे कांस्टेंट। कांस्टेंट इत्थे हैगा Z ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ Z ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। पहला इत्थों तक देखो समझ आ गया। ठीक है, इलैक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड़ा वा एक कांस्टेंट वैल्यू है और यह डिपेंड किस चीज ते करदी है, यह डिपेंड करदी है कि तुहाडा इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन केड़ा वा, ओदे विच केड़ा इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, केड़े केटायंस ने या केड़े अनायंस ने। क्लियर होएगा। और यह भी सानू रिलेशनशिप पता वा कि I इज इक्वल टू Q बाय T। ठीक है, इलैक्ट्रिक करंट का रिलेशनशिप है ते Q का दे बराबर आ गया IT दे। आप इसकी जगह ते भी लिख सकते हैं M इज इक्वल टू ZIT। लिखाण का कारण है वा कि जो साडे को न्यूमेरिकल्स आणगे ते वैल्यू यूज होनी है। और जिहड़ा Z है जिन्हों आप इलैक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किया, इनू किदां लभदे आ, इनू कड्ढण दा तरीका हैगा, यह कड्ढण दा तरीका वा Z इज इक्वल टू E बाय F। Z इज इक्वल टू E बाय F। व्हाट इज E? बेटा E इत्थे हैगा इक्विवेलेंट वेट, F की है, F हैगा फैराडे कांस्टेंट। की है फैराडे कांस्टेंट। पहला तो मैं तुहाडे नाल गल करा इक्विवेलेंट वेट की हुंदा। जिन्हों इक्विवेलेंट वेट नहीं कढ़ना आंदा वो मेरे कुछ दिन पहला ही एक मैं लैक्चर दिता 11th दे विच इक्विवेलेंट वेट दे उत्ते। ठीक है, कॉन्सनट्रेशन टर्म नूं समझाउण दे लई, क्योंकि नॉर्मैलिटी फाइंड आउट करनी होए तां भी इक्विवेलेंट वेट कढ़ना पैंदा, ते उहनूं जरूर देख लिओ। इक्विवेलेंट वेट जदों किसी भी एलीमेंट का असीं कढ़दे हां साडे कोल ओहदा मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला वा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एक्स। व्हाट इज एक्स? एक्स हुंदा वा तुहाडे कोल वैलेंसी फैक्टर हुंदा। ठीक है, और इत्थे तुहाडे कोल वैलेंसी जिहड़ी आ ओह ए होएगी कि एक्स इत्थे की होएगा, एक्स इत्थे होएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। ठीक है, सिंपल समझ लो कि अगर मान लो तुहाडा H पॉजिटिव उत्थे जा रहा, H पॉजिटिव जा रहा और एक इलैक्ट्रॉन लैके न्यूट्रल हो रहा, ਜਾਂ इधर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Cl जाके एक इलैक्ट्रॉन दे रहा, एक इलैक्ट्रॉन दे रहा, उत्थे x की वैल्यू 1 आ जाएगी। जिथे दो इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे 2 आ जाएगी। मॉलिक्यूलर मास ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆਂਦਾ ही है। सो इक्विवेलेंट वेट की है मॉलिक्यूलर मास बाय x। ਤੇ दूसरा आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫੈਰਾਡੇ कांस्टेंट। व्हाट इज फैराडे कांस्टेंट? फैराडे कांस्टेंट कुछ नहीं है, यह हैगा चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। एक मोल इलैक्ट्रॉन्स ते जिन्ना चार्ज है उन्होंने आप बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। और यदी वैल्यू हुंदी है, यदी वैल्यू है तुहाडे कोल 96500। यह कांस्टेंट वैल्यू है
96,500 कूलम, क्योंकि फैराडे मतलब कांस्टेंट की है ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, 1 ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਜੋ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ E/F। E ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਵੇਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਬਾਈ x। F ਕੀ ਹੈ ਫੈਰਾਡੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੈਥਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਲਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾ ਨੋਟ। ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पहला लॉ समझेंगे। चलिए अगे चलो हुण बारी आंदी है सेकंड लॉ की। ठीक है, फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ तो ही सेकंड लॉ जड़ा वा वो एक्सटेंड किया गया, ज़्यादा कोई फर्क नहीं आता। जे फर्क तुम समझ जाओगे तो भी वधिया वा। एक्सटेंशन कितना हुई वो मैं तुहानूं दसदा। दूसरा लॉ की कहंदा, दूसरा लॉ कहंदा कि अगर मान लो असी दो इलैक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस नू सेम चार्ज दईए, if same charge is given to same charge is given to different electrolytic solutions, then amount of substance deposited on their respective electrode marker is directly proportional to equivalent weight of electrolytes. That's it. हाँ की बोलदा कहंदा अगर असी सेम चार्ज प्रोवाइड कराइए डिफरेंट इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन नू, हुण देखो मान लो साडे कोल दो इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है और आप दोनों नू सेम चार्ज प्रोवाइड करवा रहे हैं, इनू भी सेम, इनू भी क्यू देता, मान लो इनू भी क्यू देता, ते लॉ ए डिफाइन करन दिया कि थोड़ा जा अगर दोनों सोल्यूशन नू सेम चार्ज प्रोवाइड करवाइए तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इट गिव्स दैट द अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड ऑन रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि इस इलेक्ट्रोलाइट दे विच
इस सैल विच इत्थे मास डिपॉजिट होना, इस विच इत्थे डिपॉजिट होना। कितना मास इन्हां दे रिस्पैक्टिव इलैक्ट्रोड ते डिपॉजिट होएगा वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगा इस वारी चार्ज नहीं, इस वारी इन्हां दे इक्वलेंट वेट दे। किस तरह ए देख लो, पहला मान लो साडे को दो इलैक्ट्रोलाइटिक सैल लगा लो, सैल ने, और इन्हां नू सेम चार्ज देने दे लई आपां की कर दिता, आपां इन्हां नू सेम सैल दे नाल वेरी कर दिता। ठीक है, इन्हां नू आपां सेम सैल दे नाल जोड़ दिता। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, डन। या फिर ये भी कर सकते ही कि पहले एक सैल लेंदे, एक फिक्स टाइम लगा के फिक्स करंट इहदे चों पास करवांदे, और क्योंकि Q इज इक्वल टू IT, जिन्ना करंट इनू दिता और जिन्ना टाइम लगाया उन्ना ही करंट इनू दिंदे और उन्ना ही टाइम इनू लगांदे। ते जां फिर आपां इदां कर दिता कि इनू सीरीज दे विच बैटरी नाल जोड़ दिता, और सानू पता वा चार्ज जदों सीरीज दे विच लगाया जांदा, 10th विच पढ़ के आए हां, ते चार्ज या करंट जिहड़ा वा वो इक्वल मूव करदा। और अगर मान लो करंट इक्वल इहदे चों मूव करन दिया और इक्वल इहदे चों मूव करन दिया और सेम टाइम ते करन दिया, तां भी चार्ज सेम हो सकदा वा। ठीक है, चार्ज तां भी सेम हो सकदा। क्लियर हो गई गल? When two cells are connected in series, they will follow the same charge. ठीक है, they will get the same charge. क्लियर हो गया तो तक? ठीक है, इतना नोट कर लो, पहला इत्थों तक नोट कर लो, फिर आपां अगे चलते हैं। ठीक है, मैं तुहानू इत्थे स्टेटमेंट हटा के इत्थे समझा देना। हुण साडे कोल दो इलैक्ट्रोलाइटिक चैंबर ने, सैल मान लो, ते इन्हां दे विच मान लो इत्थे जिहड़ा मास डिपॉजिट हो रहा वो M1 है। ठीक है, पहला शैल है जिहड़ा इहदे विच मास M1 डिपॉजिट हो रहा, लेट इत्थे M2 हो रहा। सो हुणे हुणे आपां लॉ पहला कीता ही, उहदे विच मास डिपॉजिट जिहड़ा सी वो कादे बराबर हुंदा ही, वो हुंदा ही Z into Q। ठीक है, क्लियर? और इस सैल विच जिहड़ा मास डिपॉजिट होण दिया वो भी Z into Q। पर मैं तुहानू की कहा ही, Z जिहड़ा वा वो डिपेंड करदा वा एक वैल्यू ते, और वो वैल्यू की ही, वो वैल्यू ही E by F, equivalent weight of the material। सो इत्थे आपां equivalent weight of the material फर्स्ट वाले नू E1 कहता, जो भी इक्विवेलेंट वेट होएगा। ठीक, और इससे तरह ही इंटू Q, और इससे तरह ही तुहाडे कोल E2F इंटू Q। क्यों? सही है कि नहीं? क्लियर हो गया? जिन्ना भी मास डिपॉजिट होएगा पहले इलेक्ट्रोड ते वो Z into Q दे बराबर है। Z की वैल्यू की होती है E by F। व्हाट इज E? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का दा जो मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है उस सी दा। सो आपां क्योंकि मटेरियल पहले नु E1 नाम देता ते दूजे मटेरियल नु आपां E2 नाम दे देता, दैट्स इट। अगर मान लो मैं डिवाइड कर दियां M1 by M2, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, डिवीजन दे दी। जो मैं डिवीजन की तो की आ गया तुहाडे को E1 by F by Q, E2 by F into Q। कटिंग कर लो, M1 by M2 is equal to E1 by E2। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ कह सकते हैं M1 directly proportional to E1, मतलब the mass deposit on first electrode is directly proportional to the equivalent weight of the material of that electrolytic solution। जो भी मटेरियल होएगा, जो भी तुहाडा इक्विवेलेंट वेट आएगा, उससे तरह ही M2 की वैल्यू भी जिहड़ी आ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की आएगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी E2 दे। इट मीनस कि जदों सेम चार्ज पास आउट होएगा नंबर ऑफ इलैक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दे विच, ते जिन्ना मास डिपॉजिट होएगा रिस्पेक्टिव इलैक्ट्रोड दे उत्ते, जदों आपां उन्होंने मान लो सीरीज च लगा दिता यानी कि सेम चार्ज दे उत्ते, वो इस चीज ते डिपेंड करेगा
कि जेड़ा सोल्यूशन है ओदा इक्वलेंट वेट कितना। समझ आ गया? ऐसी तुहाडा फैराडे दा सेकंड लॉ। ठीक है, इनू करो नोट, फिर अगे शुरू करिए। डन। सो यही साडे कोल की भला इलेक्ट्रोलिटिक फैराडेज लॉ खत्म हो गया। हुण गां चलते हैं, अगे काम सौखा ही है जी, यानी कि सौखा मतलब ए वाला जेड़ा टॉपिक आ रहा वो सौखा वा। इन्नी भी सौखी क्लास नहीं हैगी, इन्नी ज्यादा इजी ना बना के चलोगे, थोड़ी औखी है। सो साडे कोल आ गया नेक्स्ट टॉपिक है। देखो बेटा इत्थे गल आंदी है कंडक्टेंस दी। तुसी पैरेलल फिजिक्स दे विच सेम सैकंड यूनिट दे विच रेजिस्टेंस बारे काफी कुछ पढ़िया। रेजिस्टेंस दे उलट हुंदा वा कंडक्टेंस। सो साडे कोल अगर गल करिए कंडक्टर्स दी ते कंडक्टर्स वो सबस्टांस हुंदे आ जो कि कंडक्टेंस प्रोवाइड करवांदे आ, है ना। आपां पढ़िया ना कि जिन्हां चों इलैक्ट्रिसिटी पास हो सकदी है द सबस्टांसेस बाय विच इलैक्ट्रिसिटी कैन फ्लो ईजीली। ठीक है, उन्होंने आपां की बोलदे आ कंडक्टर बोलदे ना। अगर गल करिए कंडक्टर्स दी ते कंडक्टर्स दो तरह दे ने। पहले कंडक्टर है मटैलिक, जो कि फिजिक्स विच असीं पढ़दे पे हां, उन्हां नूं आपां मटैलिक कंडक्टर्स कह रहे हैं, फिजिक्स ही पढ़दे हां क्योंकि ठीक है। दूसरे कंडक्टर है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। सो जेडे मटैलिक कंडक्टर ने वो दिंदे आ तुहाडे कोल मटैलिक कंडक्टेंस, ते जेडे इलैक्ट्रोलिटिक है वो दिंदे आ इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है, सो साडा जेड़ा मेन गोल हैगा वो है वा। हुण मैं तुहानू दोनों नूं अलग अलग समझाने की बजाय मैं इन्हां दा डिफरेंस कराउण लगा। जो मैं डिफरेंस करावांगा दोने डिस्कशन च भी आ जाने आ, तुहानू समझ भी आ जाएगी। ठीक है, साडा चैप्टर जेड़ा वा वो इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस दे आले दुआले ही घूमना। सो आओ शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन metallic conductor and electrolytic conductor. Metallic conductors and electrolytic conductors. ठीक है जी। सो डिफरेंस सब तो पहली गल कर लीए कि मैटेलिक कंडक्टर की है। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਟਲ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਰਕੇ। ਕਿਹੜੇ? ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਰਕੇ। यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज इज ड्यू टू फ्री इलैक्ट्रॉन्स। फ्री इलैक्ट्रॉन्स पता ना की हुंदे आ, जेडे साडे मैटल्स ने उन्हां दे एटम हुंदे आ वड्डे और उन्हां दे विच जेडे इलैक्ट्रॉन्स हुंदे आ ज्यादा, जेडे कि ईजीली उस मैटल एटम तो बाहर निकल जांदे आ, क्योंकि मैटल एटम का साइज हुंदा वड्डा, जिहदे करके इलैक्ट्रॉन्स जेडे आ ईजीली उहनूं छड्ड के बाहर निकल सकदे आ, तां उहनां नूं फ्री इलैक्ट्रॉन्स कहंदे आ। मैटेलिक कंडक्टर विच करंट दा फ्लो, चार्ज दा फ्लो विद द हेल्प ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स हुंदा। जद कि आपां इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की पढ़िया, यही पढ़िया कि जदों आपां चार्ज पास आउट करदे हां विद द हेल्प ऑफ इलैक्ट्रोड ते की हुंदा, जेड़ा तुहाडा कंपाउंड है इलैक्ट्रोलिटिक कंपाउंड है वो टुट जांदा आयंस विच, ते फिर जेड़े आयंस जेड़े आ ओपोजिट इलैक्ट्रोड नूं मूव करना शुरू करदे आ ते यही मूवमेंट करंट बनदी आ। सो इत्थे आएगा फ्लो ऑफ चार्ज इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की मूवमेंट करके तुहाडा फ्लो ऑफ चार्ज हुंदा। सिंपल। दूसरा पॉइंट, मैटेलिक कंडक्टर चो जदों भी इलैक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो मैटेलिक कंडक्टर दे विच कोई चेंज नहीं आता। मैटेलिक कंडक्टर एज इट इज रहिंदे आ, जिन्नी मर्जी इलैक्ट्रिसिटी पास करो। एक वायर है ਉਹਦੇ ਚੋਂ जिन्नी देर मर्जी तुसी इलैक्ट्रिसिटी पास करो ਉਹਦੀ कंपोजिशन कदी नहीं बदलती। सो नो केमिकल
change in metallic conductors, ठीक है, when electricity is passed through them, when charge is passed through them, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚਾਰਜ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਰਜ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਔਰ ਸਲਫੇਟ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆਇਨਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ chemical decomposition take place when electric current is passed through electrolytic conductors। समझ आ रहा, शाबाश, इतना पता चल गया मेजर डिफरेंस, ठीक है। हुण गल आंदी है तुहाडे कोल रेजिस्टेंस दी। जो मैटैलिक कंडक्टर च रेजिस्टेंस दा सोर्स ही इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टर दे विच रेजिस्टेंस दा सोर्स ओ नहीं हैगा, दोनों च फर्क है। देखो मैटैलिक कंडक्टर दी रेजिस्टेंस बड़ी सिंपलीफाइड है कि मान लो साडे कोल मैटल पीस है और जदों ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ मूव करते ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਟਲ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਐਟਮਸ ਕਹਿ ਲੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਕੈਟਾਇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, resistance is due to collision, resistance is due to collisions between electrons and cations, ठीक है। cations केटाइंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਕਰਨਲਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 11th ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ ਕਰਨਲਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜੀ। resistance is due to collision between electrons and cations और kernels। पर क्या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इस तरह दी है, इलेक्ट्रोलिटिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक रेजिस्टेंस ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਊ ਟੂ ਸੋਲਿਊਟ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ अलग ਤੋਂ ਸਮਝਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੋਲਿਊਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਮੰਨ ਲਓ मैं थोड़ा इतने समझाना, फिर बाद में इन्हों अरेज कर देंगे। इन्हों सिर्फ समझाने वास्ते एक सोल्यूशन है, इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, जिहदे विच तुसीं उहनूं पाया सोल्यूशन दे विच पा दिता लैक्टिक बेस पाया NaOH। हुण NaOH अगर अलग अलग इलैक्ट्रोड इनू अपने वाले पासे खिंचदे आ, NaOH OH नैगेटिव है, यह पॉजिटिव है, इधर नूं मूव करेगा, इधर नूं मूव करेगा, यह तो पता ही है सानूं। पर इन्हां दी जिहड़ी आपस दे विच कंडक्शन है जो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करके जुड़े आ,
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਸੋਲਿਊਟ ਸੋਲਿਊਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਿਊਟ ਸੋਲਿਊਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਇਹ ਘੱਟ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੇਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਸੋਲਿਊਟ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ NaOH ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਦੇ ਚ H2O ਵਿੱਚ ਐਕੋਸ ਕੀਤਾ, यानी कि NaOH ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੈ H2O। H2O ਕਾਦੇ ਚ ਟੁੱਟਦਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ। ਹੁਣ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ, यानी कि ਸੋਲਵੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਇਨਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਇਨ ਚ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋਲਵੈਂਟ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਾਟਰ ਇਹਨਾਂ ਆਇਨਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ NaOH ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ। यानी कि ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰ the resistance have three factors: solute solute interaction, solute solvent interaction and solvent solvent interaction। समझ आ गया? इन्हें मैं अलग तो वखरा भी समझा देंगा तानू जे तानू नहीं पता चलेगा। फोर्थ और लास्ट पॉइंट हैगा और वो हैगा फिर तो इहदी रेजिस्टेंस दे नाल ही तानू पता मैटेलिक कंडक्टर जदों ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ resistance also increases। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ resistance ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ resistance ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। resistance decreases with increase in temperature। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਟ ਹੀ ਹੈ NaOH ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਉਹ ਹੀਟ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਸੋਲਿਊਟ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬੌਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਘਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਮੇਜਰਲੀ रेजिस्टेंस दे कारण डिफरेंट है मैटेलिक कंडक्टर तो, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा रोल अदा करेगी और ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਮੈਟੈਲਿਕ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦਵ ਕਰੋ ਨੋਟ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਉਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਜ਼ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। लास्ट टॉपिक है, टॉपिक ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग the electrolytic conductance। ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ
नेचर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। ਤੁਹਾਡਾ ਸੋल्यूशन की कंडक्टेंस प्रोवाइड करवाएगा वो इस चीज ते डिपेंड करता कि तुसी किस तरह का इलैक्ट्रोलाइट लिया। मैं तुहानू दस्सिया ही इलैक्ट्रोलाइट दो प्रकार दे हुंदे ने, एक हुंदा स्ट्रॉन्ग और एक हुंदा वीक इलैक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट वो हुंदे आ जिहड़े कि तू पूरी तौर दे उत्ते आयंस विच टुट जांदे आ, जबकि वीक इलैक्ट्रोलाइट वो हुंदे आ जिहड़े कि पूरी तरह नाल आयंस विच नहीं टुट पांदे, उन्हां नूं आपां बोलदे आ वीक इलैक्ट्रोलाइट। ठीक है। सो अगर तुम स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट लोगे तो ताड़ी कंडक्टेंस जिहड़ी है वो बढ़ेगी, अगर वीक इलैक्ट्रोलाइट होएगा तो कंडक्टेंस जाएगी घट। ठीक, ऐसी पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है साडे को साइज ऑफ आयंस। आयंस के साइज से भी डिपेंड करता वा। अगर साइज आयन का ज्यादा होएगा, अगर साइज आयन का ज्यादा होएगा ते सॉल्वेशन ज्यादा होएगी, मिक्सिंग ज्यादा होएगी, और अगर मिक्सिंग ज्यादा होएगी ते कंडक्टेंस जिहड़ी आ वो फिर तो एक बारी ताड़ी घट जाएगी। यानी कि विद इंक्रीज इन द साइज, विद ग्रेटर द साइज लेसर इज द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस घट होएगी। ठीक है। सॉल्वेशन साइज बड़ा होने करके की होएगा, अगर आयन का साइज बड़ा हो गया तो दूसरे ओपोजिटली चार्ज आयन जिहड़े ज्यादा उहदे नाल चिपक जाणगे, जिहदे करके सॉल्वेशन जिहड़ी आ वध जाएगी। समझ आ गई। तीसरा पॉइंट है वा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मैं तुहानू हुणे दस्सिया ही कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट ते किस तरह डिपेंड करता। पहला इहनू देखो, समझ आ गया तो तक। हाँ जी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट ते किस तरह डिपेंड करता। देखो, अगर तुहाडा सॉल्वेंट पोलर नेचर दा वा, पोलर समझदे हो, पोलर का मतलब हुंदा जिहड़ी चीज इजीली पॉजिटिव ते नेगेटिव नू तोड़न च हेल्पफुल होए या टुटन च हेल्पफुल होए। ठीक है। जिहड़ी आपे भी टुट जाए ते दूसरे नू भी तोड़ दे। जिद्दां वाटर की गल कर लीए, वाटर नू पोलर कहता क्योंकि H पॉजिटिव ते OH नेगेटिव इजीली दे रहा वा, पोलर कह देता। ठीक है। सो अगर ते तुहाडे सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज्यादा वा, पोलैरिटी अगर ज्यादा वा ते कंडक्टेंस ज्यादा देगा, क्योंकि अगर पोलैरिटी ज्यादा ते ज्यादा आयन तोड़ेगा, ज्यादा आयन तोड़ेगा ज्यादा कंडक्टेंस होएगी। ओदे उल्ट अगर तुहाडी सॉल्यूशन दी सॉल्वेंट दी विस्कोसिटी ज्यादा वा, विस्कोसिटी ज्यादा होने ते एदी जिहड़ी कंडक्टेंस है वो घट जानी है जी, क्योंकि विस्कोसिटी, विस्कस मटीरियल दे विच मूवमेंट नहीं ना हो पाएगी। सो विस्कोसिटी इहदे ते डिपेंड करता वा कि अगर तुसीं ज्यादा कंडक्टेंस चाहते हो तो पोलैरिटी होनी चाहिए हाई पर विस्कोसिटी होनी चाहिए लो। नेक्स्ट फैक्टर है तुहाडा टैंपरेचर। इहदे ते पहले ही गल कर ली है। टैंपरेचर इंक्रीज होएगा, विस्कोसिटी घटेगी, विस्कोसिटी घटेगी, पोलैरिटी बढ़ेगी। कुल मिला के कहिए कि टैंपरेचर इंक्रीज करन नाल इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जिहड़े आ उन्हां दी कंडक्टेंस वध जांदी है। पंजवां ते लास्ट पॉइंट है तुहाडे को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलैक्ट्रोलाइट्स। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दे उत्ते एक लॉ भी आपां पढ़ना। हाल दी घड़ी मैं तुहानूं यह कह दांगा कि स्ट्रॉन्ग ते वीक इलैक्ट्रोलाइट दे विच इहदे च इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का एक अलग अलग बिहेवियर है। एक ग्राफ दे नाल इहनूं समझाया जा रहा, सो मैं करवावांगा। यह पॉइंट नूं मैं होल्ड करता। ठीक है। क्लीयर हो गई गल। इतों तक मैं तुहानूं समझा दिता। अज आपां पढ़िया की लॉ ने, फैराडेज लॉ की सी आपां पढ़ के आए हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलैक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिवली मास और चार्ज किदां आपस जुड़े हुए ने, इत्ते गल हुई जो कि आपां फैराडे लॉ दे विच पढ़िया। उस तो बाद असी पढ़िया मैटैलिक कंडक्टर ते इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की ने, उन्हां दा डिफरेंस की है, ते उस तो बाद किहड़े फैक्टर्स है जिन्हां ते डिपेंड करदी है इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। होप सो आपां चैप्टर च सही स्पीड सही तरीके नाल गांह वधदे पे आ। ठीक है जी। एक चीज होर तुहानूं मैं कहना चाहांगा, इहनूं जरा ध्यान नाल सुनियो।
ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਕੋ ਨੋਟਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਨੋਟਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋਰਲੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਸੋ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਚੈਪਟਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਓ। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਵਧੀਆ ਨੋਟਸ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।